Hello everyone. Today our topic is a medical record of a patient. A medical record of a patient has three sections: general section, nurses section, and a medical section. The general section contains the administrative and personal data of the patient. The socio-economic record of the patient includes the name of the patient, father's or husband's name, age, sex, religion, income. Income is optional. Patient's address, address of nearest relative. And in this we can also add, in case of emergency, to whom to contact, his name and his mobile number. Other administrative information which is included is date of admission, patient number, name of the nursing unit, bed number, and this sheet is prepared in the central admitting office. Means at the time of registration of the patient, or at the time of when admitting into the IPD, this information is gathered, and the record of a patient means जो patient की file होती है that is prepared, and उसमें ये सारा data include कर दिया जाता है. Then comes the nurses section. Nurses section is that section which is the record of graphic charts related to his temperature, pulse, respiration, blood pressure, or if any of the any other observation is taken by the nurse. That is if pain is anywhere, pain ke liye there are emojis. Then intake output chart is the nurse also maintains his or her the food intake, the intake that is कि अगर उसको सिर्फ आईवी फ्लूइड लगा हुआ है तो कौन सा आईवी फ्लूइड, कितना आईवी फ्लूइड, 100 ml 50 ml क्या कितना दिया गया था. और अगर कहते हैं वो ओरल फूड ले रहा है तो ओरल फूड में ब्रेकफास्ट लंच डिनर उसने क्या क्या खाया. एंड आउटपुट में इफ़ यूरिन बैग लगा है तो यूरिन बैग खाली करने के टाइम पर कहते हैं वो लोग नोट करते हैं कि व्हाट वाज द आउटपुट ऑफ द यूरिन. और अगर इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, माइल्ड केस है एंड आउटपुट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड, तो वो एक बार ही पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव गॉन फॉर यूरिन, और इफ़ यू हैव गॉन फॉर freshen up or not. तो ये सब intake and output chart is also maintained by the nurse. And what were the medicines administered to him? So these medicines record also the nurse maintains. Besides these, whatever tests are being done, ठीक है, टेस्ट के लिए वॉट एवर टेस्ट या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स या थेरेप्यूटिक प्रोसीजर जो भी है उसका जो भी शीट आती है, जो भी रिकॉर्ड है, वो भी नर्स की ड्यूटी रहती है टू पुट इन. बट वो मेडिकल सेक्शन में आता है. विल सी द मेडिकल सेक्शन ऑल्सो. मेडिकल सेक्शन में हिस्ट्री शीट, अगर उसका कोई पुराना डिजीज़ का हिस्ट्री है, देन फिजिकल एग्जामिनेशन शीट, प्रोविजनल डायग्नोसिस, ऑल द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, फिजिशियन ऑर्डर शीट, ट्रीटमेंट्स, एनेस्थीसिया अगर दिया गया, ऑपरेशन अगर होना है, ऑब्स्टेट्रिक मीन्स गायनिकोलॉजी से रिलेटेड कोई रिकॉर्ड है या कोई ट्रीटमेंट है या कोई रिपोर्ट है. देन व्हाट वाज द देन कंसल्टेंसी रिपोर्ट मीन्स कोई और अगर डॉक्टर आया है उन्हें देखने के लिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है तो जो दूसरा डॉक्टर आएगा ऑन कॉल देखने के लिए, वो अपना जो भी उसका रिकॉर्डिंग है वो लिख के एंड देन ही विल साइन इट अप. देन प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं, फाइनल डायग्नोसिस, देन जो भी उसका ट्रीटमेंट चला है वो नर्सिस सेक्शन में आ जाएगा. एंड देन द डिस्चार्ज समरी, अगर इन केस डेथ हो जाती है तो वो कॉज ऑफ द डेथ, और अगर डेथ हुई है तो ऑटोप्सी की रिपोर्ट. तो दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन द मेडिकल सेक्शन. नाउ देयर इज़ अ सेक्शन व्हाट इज़ मेडिकल रिकॉर्ड. मेडिकल रिकॉर्ड by definition, what is medical record? By definition it is a clinical, scientific, administrative and a legal document of the patient. So जो इसमें 4 पॉइंट्स हैं, क्लिनिकल, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल, उसको हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है. क्लिनिकल डॉक्यूमेंट इज़ द लिस्टिंग ऑफ क्लिनिकल हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड नर्सिंग रिकॉर्ड्स. Scientific document means it is used to study the patient's condition and progress to scientifically practice medicine for research. Administrative document, because administrative planning, budgeting,
if there are any points for improving the quality of care and hospital statistics, this is also included in the medical record. And legal document, yes, medical record is a legal document because it is used अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट. कुछ भी अगर मैल प्रैक्टिस होता है, सूट कोई केस फाइल करता है, तो हॉस्पिटल ने अपनी डिफेंस के लिए, क्लिनिशियंस ने अपने डिफेंस के लिए, या पेशेंट ने किसी के ऊपर केस करने के लिए ये मेडिकल रिकॉर्ड एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है. सो मेडिकल रिकॉर्ड, इसमें सेक्शंस कौन से होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव अगेन वही डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक डाटा इंक्लूड किया जाता है. नेम ऑफ द पेशेंट, एज, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, पेशेंट परमानेंट एड्रेस, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर एंड एवरीथिंग. लीगल डाटा होता है. लीगल डाटा में वो कंसेंट साइन कराते हैं कि हमने ये डायग्नोस किया है एंड इसका ये ट्रीटमेंट है, एंड द ट्रीटमेंट इज़ गिवन बाय अपॉइंटेड डॉक्टर्स, एंड release of information has been given to the patient. So then there is financial data, means relating to the payment of fees for the medical services and hospital accommodation. वो उन्होंने चार्ट बनाया हुआ होता है कि आपने डिलक्स सूट लेना है या जनरल वार्ड में लेना है या कौन से वार्ड में रहना है, प्राइवेट रूम लेना है, तो वहाँ पे एक वो लोग चार्ट बना के रखते हैं. उसमें वो टिक मार्क लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स प्रेफरेंस. एंड वेजिटेरियन फूड चाहिए, नॉन वेजिटेरियन फूड चाहिए, देन और क्या क्या सर्विसेज चाहिए, लाइक वाईफाई का कनेक्शन अगर कोई मांगता है, तो ये सारे डिटेल्स कितने हैं उस पेपर पे लिखा होता है. एंड द ऑप्शंस आर टिक, एंड उसके हिसाब से जो भी कहते हैं बिल बनता है वो उस समय कहते हैं पेशेंट या पेशेंट के अटेंडी को बता दिया जाता है. तो दैट मीन्स इट इज़ मतलब इट इज़ हैविंग द फाइनेंशियल डाटा एज वेल. देन क्लिनिकल डाटा इज़ कि हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ओपीडी की तरह आया था या इमरजेंसी के थ्रू एडमिट हुआ है, जैसे भी एडमिशन उसका परमिसिबल हुआ वो सब इंक्लूड कर दिया जाता है. नाउ व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड? ऑफ कोर्स जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा, फर्स्ट स्लाइड पे कि इट इज़ यूज एज अ साइंटिफिक डॉक्यूमेंट, इट इज़ यूज एज अ क्लिनिकल डॉक्यूमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल डॉक्यूमेंट. ये 4 यूजेस तो हैं ही. इसके अलावा क्या मेन यूजेस आप और जॉट डाउन कर सकते हो कि इट डॉक्यूमेंट्स द कोर्स ऑफ पेशेंट्स इलनेस एंड ट्रीटमेंट. जो हिस्ट्री है दैट मेडिकल रिकॉर्ड हैज़ इट कम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, कंटिन्यू केयर ऑफ द पेशेंट, रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, एंड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के लिए भी हम मेडिकल रिकॉर्ड को यूज़ करते हैं. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेडिकल रिकॉर्ड? According to Dr. K. Penether, record should serve specific needs, specific objectives, specific purpose. The medical record should be kept to minimum with respect to number, scope and content. Means medical record बहुत लोगों के, हर किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए. It is designed for least expensive handling. Least expensive handling डिज़ाइन का मतलब है कि जो आपकी फ़ाइल है या जो आप पेपर यूज़ कर रहे हो या उसके अंदर थ्रेड से बांध रहे हो या मेटल वाला यूज़ कर रहे हो, तो इट शुड बी लीस्ट एक्सपेंसिव फॉर हैंडलिंग पर्पस. मेडिकल रिकॉर्ड अप टू डेट होना चाहिए. इट इज़ वर्थ देयर कॉस्ट एंड बी रिलेटेड डायरेक्टली टू टैबुलेशंस एंड रिपोर्ट्स. कोई जो भी टेबल एंड रिकॉर्ड हमने बनाना है, रिपोर्ट बनानी है, वो उसमें होना चाहिए. इट शुड बी अवेलेबल व्हेन नीडेड मीन उसकी जो फाइलिंग है एंड स्टोरेज है वो प्रॉपर होना चाहिए. ठीक है. जब भी कोई अगर कहते मांगने आता है मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में किसी भी पेशेंट का डाटा, तो वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए. तो कोडिंग, फाइलिंग, स्टोरेज ये सब प्रॉपरली होना चाहिए. एंड वहाँ पर आजकल तो कंप्यूटराइज्ड हो गया है, तो कंप्यूटर में सर्च का ऑप्शन होता ही है, तो यू कैन सर्च फ्रॉम वेयर एवर यू वांट. देन बी कंसिडर्ड वैल्यूएबल बाय सुपरवाइजर्स एंड लाइन्स मैनेजमेंट. मतलब सुपरवाइज़र एंड लाइन मैनेजमेंट उसको वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट समझे. देन व्हाट आर द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स? इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, इट शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड, इट शुड बी टाइमली, इकोनॉमिकल, complete sufficient data, adequate and accurate. These are some of the points of characteristics. Comprehensive means easily understood होना चाहिए. Each and everything should be simple and elaborative. Properly planned का मतलब है जो उसमें रिकॉर्ड्स हैं, जो नर्सिंग सेक्शन, मेडिकल सेक्शन वाली जो रिपोर्ट्स हैं, जो पेपर वर्क है, वो प्रॉपरली हमें फाइलिंग
करना चाहिए, ठीक है। एंड रेगुलर इंटरवल्स में उसमें से जो भी कहते हैं बेकार पेपर वगैरह है उसको हटा देना चाहिए। पेपर वर्क को रिड्यूस्ड मतलब बहुत कम पेपर वर्क होना चाहिए। सब डाटा जो है लाइक मोस्ट थिंग्स शुड बी ऑन वन पेपर ओनली। टाइमली मीन्स जो भी उसमें से इंफॉर्मेशन हमें निकालना है वो रिट्रीवल जो है हमारा जल्दी हो जाना चाहिए। इकोनॉमिक मीन्स हमारा फाइनेंशियली बहुत एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। सफिशिएंट डाटा मीन्स उसका पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, फॉलोअप एंड आउटकम ऑफ द पेशेंट कि वो ठीक हो गया या उसकी डेथ हो गई या वो लामा चला गया, वॉट एवर जो आउटकम है वो उसमें होना चाहिए। एडिक्वेट मीन्स ऑल नेसेसरी फॉर्म्स शुड बी देयर। एक्यूरेट मीन्स कि अगर हमें एक क्वान्टिटेटिव एनालिसिस करना है हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स के लिए तो इट शुड हैव ऑल द इंफॉर्मेशन इन इट. So these are the characteristics of a medical record. So today we have done कि medical record क्या होता है, what are the major sections of medical record and a medical record में क्या क्या sections होते हैं and उसको हम किस तरीके से लगाते हैं. Okay class, I hope you have understood all this.